So join me in welcoming Mr. Simerjeet Singh on the stage. Thank you so much. What an incredible pleasure it is to be here today. Thank you so much for having me. This is nothing short of a dream come true for me. Nothing short. Trust me, I've spoken at the United Nations. I've spoken at more than 350 plus corporations of this country, some of the biggest companies in this country, in Middle East, in Southeast Asia, in United States that I've partnered with. But जो खुशी आज मुझे हो रही है, the feeling of gratitude that I have today, वो मुझे पहले ये एहसास कभी नहीं हुआ, क्योंकि I am the product of this institute, and this institute has had a huge role in transforming and shaping who I am today. So blessed to be here. और शायद आप इस चीज से सहमत होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों कभी भी आसान नहीं होती है। सबसे बड़ा वहम ये है, जो व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि you know what, I came in this institute as a uncertain boy from a town called Batala in district Gurdaspur. Anyone from Batala here? Or this? Oh, good. Hello. A special hello to you. I came in, you know, and उस जमाने में एक बड़ा temporary सा fashion style चला था. Those were bell bottoms, right? So I came in, you know, with that mindset, haven't been exposed much to the outside world, wearing my bell bottoms, and it was sort of an interesting experience when I met so many students from so many different parts of the country. That in itself was an education. ये जो आपके आसपास है ना, एक बार इनको देखो जरा ध्यान से. Freshers, just have a look around. The people that you are going to spend time with, this in itself is going to be an education. This in itself is such an opportunity. Consider yourself lucky. I consider myself lucky. When I walked in, I said, wow, कुछ चीजों की वैल्यू ना कुछ टाइम के बाद पता लगती है. टीचर्स की वैल्यू कुछ टाइम के बाद पता चलती है. ये जो अपॉर्चुनिटी मिली आज, इसकी वैल्यू कुछ टाइम के बाद, और आज जो मुझे एहसास हो रहा है, we were lucky, to be in a student body जो इंडिया के far flung corners से थे. To learn so much from each other. To be experiencing at that point of time, 96, 99 I'm talking about, 96, 99 में वो जो standards थे उस समय के, वो स्टोर से जाकर सुबह फिश लेकर आना और चिकन लेकर आना और उसको फिले करना, उसको कट करना, वो फूड प्रोडक्शन की क्लासेस में से छलांग लगाकर भाग जाना, और कितना कुछ आप नहीं कर सकते हो. इसलिए मुझे सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं इनवाइट करते हैं, because sometimes I can be a bad influence also, right? But no, jokes apart, it was a transformational experience, and transformation is never easy. Take a deep breath in, inhale. Shake someone's hand on your right and left and look them in the eye and tell them, transformation is never easy. Say it now, please. Transformation is never easy. जो व्यक्ति, जो यूट्यूबर, जो मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये ख्वाब दिखा रहा है कि बेटा तुम ऐसे आया था इंस्टीट्यूट में, मैं ये बन गया हूं और ये इजी जर्नी रही थी, वो आपका बेवकूफ बना रहा है, याद रखना. Transformation is never easy. It's a painful process. You know, from the caterpillar to the butterfly. Yeah? Ever heard that story? Seen those videos? It is a painful process. और एक शख्स था वो जो steroids पे, right? Motivational speaker on steroids. हम सब कुछ फटाफट से कर देंगे, बदल देंगे, तुम्हारी जिंदगी इस सेशन के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी. Right? तो उसने क्या किया? वो देख रहा था ये जो caterpillar है, ये struggle कर रहा है. क्या कर रहा है? Struggle कर रहा है कोकून से बाहर आने की. ओके? तो उसको उसके ऊपर तरस आ गया. कहता मेरे को उसको थोड़ा जल्दी बाहर निकाल देता हूं ताकि ये जल्दी से उड़ ले. कितने लोग जल्दी उड़ना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो. नहीं, अब सब लोग मीनिंग समझ गए, स्टोरी कहां जा रही है. स्मार्ट ऑडियंस, राइट? So he dragged that caterpillar out of that cocoon before it was ready. The caterpillar did not go through the struggle. And you know what क्या हुआ? उसको बाहर तो उसने जल्दी निकाल लिया कोकून से, पर वो पंख नहीं फैला सकी. कभी वो बटरफ्लाई उड़ नहीं सकी. His wings were crumpled. It could never fly. Struggle is the essence of life. Struggle will shape you. And look at the order in this room. And Chirag, you've accompanied me to so many events. Do you see such an orderly audience? This is a rare sight. Give yourselves a round of applause. Do it now. Give your faculty members a thunderous round of applause, please. Yes. क्योंकि कल टीचर्स डे था, राइट?
ये वो मशालें हैं जो खुद जलकर हमारा रास्ता रोशन करती हैं। ये वो मशालें हैं जो खुद को जलाकर हमारा रास्ता रोशन करती हैं। They leave thousands of other opportunities that they can pursue in their career to be here with you, to shape your career. Don't take it lightly. Don't take it lightly. This is a debt. ये एक ऋण है जो हमें चुकाना है अपने माँ बाप का, जिन्होंने हमें भेजा है, आपको भेजा है यहाँ पर to do what you're doing today. Think about them. Think about the teachers. Think about all the expectations riding on you. And then ask yourself, am I ready to be transformed? Yes or no? That is a big question. When I will leave this institute, or 10 years from now, or 23 it is for me now, 23 years, 1999 I graduated, a journey of 23 years. And I'll tell you, I've accomplished a lot in these 23 years. But जो accomplishment आज मुझे महसूस हुई अपने इंस्टीट्यूट में, ये प्यार, ये स्नेह, ये आदर सम्मान पाकर, वो उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता। तो लक्ष्य कुछ ऐसा रखो, ये ऐसा कुछ निर्धारित करो, I will become that sort of a person that my teachers will be proud of, that my parents will be proud of. And that is going to take sacrifice, yes or no? Without sacrifice, you're just living in fool's paradise. You got to pay the price. हर चीज का दाम होता है, yes or no? आपने बड़ा खूबसूरत रेड बैग पकड़ा हुआ है, बड़े अच्छे से पकड़ा हुआ है, look like something very precious inside it. Yes. Right? If you go buy a nice handbag or something, you pay a price for it. The better the brand, the more the price, right? The better the quality, the more the price. That's how it is. So you want something good in your life? Because you're just starting on your journey? You want a good life? Yes? Just understand this. You'll have to pay the price. दाम चुकाना पड़ता है. क्या होता है? सुना नहीं मुझे. अभी भी नहीं सुना. दाम चुकाना पड़ता. Nothing is free without the proper inputs going into it. And you know, we had wonderful experiences. मैं कुछ पर्सनल स्टोरीज, इससे पहले मैं प्रेजेंटेशन में जाऊं, कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स से हूं, मैं बड़े अहम समझता हूं कि वो जरूर शेयर करूं. बाकी तो आप यूट्यूब पर भी सुनेंगे, जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, काफी इन डेप्थ स्टडीज भी हैं वहां पर. पहला एक्सपीरियंस, आउटडोर केटरिंग्स. कितने लोगों ने किए हैं यहाँ पर अभी तक? हाथ खड़ा करो. राइट? Alright, good. बाकियों भी सुन के हंस रहे, ये क्या होता है? ODCs, we used to make 300 rupees for being helpers at, helper मैंने ज़्यादा polished word use कर दिया, at weddings and things like that. So one of my friend came to me, he said, you want to make 300 rupees? I said, क्या है? ODC. मैं कहा, क्या उड़ीसा से आई है क्या? ODC. क्या होता है ODC? वो है फलाना, पता नहीं कौन सा केटरर होता था उस टाइम पे. वो ना टेम्पो में सबको बिठा कर कहीं ले जाएगा, हमें वो अपनी F&B की यूनिफॉर्म में जाना, और F&B की यूनिफॉर्म की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, यस और नो? है ना? पुलिस वाले रोक लेते चंडीगढ़ में, कहते वकील हो तुसी? अरे हाँ जी, हाई कोर्ट दे वकील. और शेफ, जिस दिन शेफ की क्लास हो ना, उस दिन जरा ध्यान से आना कि डिग्गी की चेकिंग हो जाती है, उसमें से छुरे निकलते थे, ये की. And then institute was pretty new in the city, so we had to explain them why we are carrying a 8-inch blade, you know, in the scooter, right? It was an interesting thing. But back to the ODC story. कहते तो ODC है, 300 रुपए मिलेंगे. मैं कहा चलो चलते हैं. कुछ चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस के लिए जरूर करना. हर चीज किताबों में नहीं होती है. कुछ चीजें एक्सपीरियंस के लिए जरूर करना. अब यहां तक पहुंचे हो, अपनी क्यूरियोसिटी के बलबूते पर पहुंचे हो, यस और नो? अपनी हिम्मत के बलबूते पे. इसको खोना मत. ये मत सोचना कि बस अब मैं होटल मैनेजमेंट सो इसलिए मैं यहाँ से होटल मैनेजर ही बन के निकलूंगा, उससे कुछ कम तो मैं खफा हो जाऊंगा. राइट? और जब मैं यूएस में पहुंचा ना, चलो ओडीसी से यूएस पहुंच गया, फिर वापस आ जाते हैं. तो वह मैरियट इंटरनेशनल का वो जो होटल था, जो अब JW मैरियट है, तो उसके बाहर रेस्टोरेंट था उनका, एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट. एंड ऐसा ही कारपेट था जो वो कार पार्क से लेकर वहां तक आता था. तो पहले दिन पहुंचा, मैं लगा मैं यहाँ के बाद मैं सिडनी गया पढ़ने के लिए. तो वन इज AIHM चंडीगढ़, द टॉप इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, यस और नो? कुछ लोग शक है. आप श्योर नहीं लग रहे मुझे. यू आर सिटिंग इन द टॉप मोस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री. इज दैट अ यस और नो? राइट. एंड नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू विल मेक आउट ऑफ इट. और बाकी सारी ऑप्शंस क्लोज कर दो. माइंड में ये चलेगा ना, अगर मैं वो करता तो क्या होता, अगर वहां जाता तो क्या करता. is close all that. Anyway, so I'm in Phoenix, Arizona, JW Marriott International. मैं वहाँ से AIHM चंडीगढ़ के बाद, सिडनी के बाद मैं वहाँ पहुँचा. मैं क्या, मेरे को बस आज तो बस मैनेजर बन गए. तो कहता वैक्यूम क्लीनर उठा ले बेटा. मेरा तो मैनेजर. वो तो कारपेट लगा ना, कार पार्क से लेकर यहाँ तक,
तो मेरे मुंह पे उसको नजर आ रहा है कि वो मैंने एंड आई एम वेयरिंग माय बेस्ट सूट एंड आई एम वैक्यूमिंग एंड मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे को इस समय देख ले तो सोच क्या रहे होंगे, इस समय सोच क्या होंगे, पुत्र अमेरिका बोल रही है, ये काम कर रहा है, राइट? बट एनीवे, लेट्स गेट बैक टू ओडीसी नाउ। कुछ एक्सपीरियंसेस सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए करना, एक्सपीरियंस से, ताकि कल को कोई कहानी तो हो। कैसे बुजुर्ग बनोगे आप जिसके पास कहानियां नहीं होंगी? पोते पोतियां आएंगे, हाँ जी क्या किया अपनी लाइफ में, मैं सारी उम्र पैर घसीट घसीट के ऐसे ऐसे इधर उधर चलते। दैट विल बी a very boring life. You got to do something so you have stories to tell to the next generations. Yes or no? So this what happened. ओडीसी हम पहुंच गए और एक ऐसी वेडिंग थी जहां पे हमें वो बारात की अराइवल पर हाथ में वो काजू कतली लेकर खड़े हो गए। पहली बार किया होता है ना, वो डुक डुक होती है ना हार्ट में, फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हो, वो कुछ ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कुछ मतलब बस आज किसी ने देख लिया ना गड़बड़ हो जाएगी। वो जैसी जैसी फैमिलीज आ रही है ना उस मैरिज में, मुझे लग रहा है बस अब वो अंकल आने ही वाले हैं, अब वो अंकल निकले ही निकले गाड़ी से, अब वो अंकल निकले ही निकले गाड़ी से। और मैं कहा बस अब आज बस कोई जान पहचान वाला बंदा ना मिले। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड देन वी गॉट बेटर। तीसरी चौथी बार ऐसे हुआ, मैं और सिद्धार्थ बारी, अनदर वन ऑफ अवर 96 99 गाइस, हमारी वो जो शर्म का जो फैक्टर था ना, वो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस का फैक्टर था, वो इतना वो रिमूव हो गया, राइट? कि सिद्धार्थ की जो सिस्टर थी और उसके जीजा जी एक पार्टी पर आए और सिद्धार्थ जैसे हाथ में प्लेटर लेकर वो बार बार उनके पास ही ला, आप कुछ लोगे, वुड यू लाइक समथिंग? उसकी सिस्टर कह रही दूर हो जाओ मेरे से, दूर हो जाओ मेरे से, वुड यू लाइक समथिंग, मुझे प्लीज चला जाए यहाँ से, एंड दैट इज द लेवल. So you have to move outside your comfort zone. You have to learn to take initiative. Learn to take initiative in your life. You got to push yourself outside the comfort zone. Yes? And you got to be prepared. You got to plan in advance. The emails that I received in the preparation part of this institute were so meticulous. एक बार खुद सर के लिए तारी जरूर. Very detailed email, and usme I could tell, and I showed it to my team. I said somebody here is in the hospitality industry, and I think these are the two places, my friends, that can transform your life. One is the hotel industry, or dusra the armed forces. You're lucky to be in one of them, but it will ask a cost from you if you want to succeed in life. So that was ODCs. I worked in that wedding. 300 रुपए कैश बाद में लिफाफे में हाथ में मिले. मेरी लाइफ की पहली अर्निंग थी, एंड मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां से एकदम यहां चला गया. जितनी जल्दी हो सके, आप जिस ट्रेड में हैं, जितनी जल्दी हो सके, लर्न टू गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लर्न टू रोल अप योर स्लीव्स, डू हार्ड वर्क, एंड ये शर्म का फैक्टर जो भी होगा, डिग्निटी ऑफ वर्क को, आप कोई भी काम छोटा नहीं है, उस माइंडसेट से करें विद अ सेंस ऑफ प्राइड, you'll go very, very far in your life. You'll go very far in your life, right? So that was where it started with 300 rupees, and then there are other stories. I want to move on to a next story. Would you want to listen to another story? बोर तो नहीं कर रहा हूँ. कभी होता ना वो किसी बुजुर्ग के पास बैठो, हमारे ज़माने में ये होता था, वैसे तो नहीं, जब हो जाएगा बता देना. But I'm very emotional today, so I have to share a few stories. Number 2, I land up in Sydney, Australia. I land up in Sydney, Australia, and एक तो वहाँ की कार वॉश स्टोरी है, वो मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि शायद जैसे शिवानी जी ने शायद सुनी है और लोगों ने भी सुनी होगी ऑन द यूट्यूब चैनल. गो वॉच दैट ऑन द यूट्यूब चैनल. पर मैं वो स्टोरी सुनाऊंगा शायद जो चैनल पर नहीं है. मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा. जिस घर में मैं रहता था, मेरा नाम सिमर था, SIMER. एक और लड़का जिसका नाम था सिमर था, SIMAR. ही वॉज देयर, लिविंग देयर फॉर 4-5 years. उसके पास फोन नंबर था, सब कुछ था, एंड टैक्सी चलाता था. मैं लैंड करके मेरे को क्या, मेरे को जॉब ढूंढनी है, एंड आई वांट टू हैव अ पार्ट टाइम जॉब. दिस इज अबाउट बीइंग रिसोर्सफुल. लर्न टू बी रिसोर्सफुल इन योर लाइफ. सो व्हाट आई डिड, सेकंड डे इन सिडनी, थर्ड डे इन सिडनी, मैंने किसी की हेल्प नहीं मांगी. मैंने वहां का वो जो रोड का जो मैप है, वो उनके मेट्रो का मैप लिया. टिकट के पैसे जो मैंने देखे, क्या मेरा पूरा दिन का पास क्या बनेगा. मैंने अपनी CV के 50 कॉपीज निकाली और फिर मैं पहुंच गया अक्रॉस सिडनी, एवरी आउटलेट, मैकडोनल्ड से लेके रिट्स कार्ल्टन तक, टू ड्रॉप माई CV. रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया. फिर मैं घर वापस आया और मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, वो जो लोग जो इतने एजुकेटेड नहीं थे पर काम कर रहे थे, मैं कहा तुम सारे जॉब्स कर रहे हो, आपने जॉब्स कैसे ढूंढी? कहता बड़ा सिंपल है, तू ये सब प्रिंट करके ले जा रहा है. अच्छा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ, डू यू हैव जॉब?
मैं कहा ओके, मैं कहा यार इसका कॉन्फिडेंस तो मेरे से भी ज्यादा है, डू हैव जॉब। मैं कहा इसकी इंग्लिश भी ब्रोकन है फिर भी कॉन्फिडेंस ज्यादा है, मैं इतने चक्करों में पड़ रहा हूँ ये। मैंने अगले दिन वही स्ट्रैटेजी शुरू कर दी। सीवी मेरे बैग में था, बट आई वुड वॉक इनटू अ प्लेस एंड से एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, डू यू थिंक, राइट, इन अ लिटिल बिट मोर पॉलिश्ड वे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज अ स्टोरी ऑफ इनिशिएटिव। बाय द एंड ऑफ द सेकंड डे, और नंबर मैं किसका देता था क्योंकि मेरे पास अपना सिम कार्ड नहीं था, अपने फ्रेंड सिमर का। उसको मैंने बोला सिमर के नाम की कॉल आए तू सिमर बनेगा, 2 दिन पहले तू लैंड हुआ है, तूने होटल मैनेजमेंट की है और तू सारी कॉल मेरे ब्याह पे अटेंड करेगा, मुझे सिर्फ ये बताएगा मुझे पहुंचना कहां है। अगले दिन शाम को घर वापस आया, कहते तेरी ना 3 जगह से जॉब ऑफर्स आई है, एक नहीं 3। दिस इज द पावर ऑफ इनिशिएटिव, पावर ऑफ रीचिंग आउट एंड टेकिंग अ रिस्क। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। Until you move, nothing happens. So by the 3rd day, I had 3 job opportunities. If you will sit wherever you are, you won't get anything. Please remember this. You'll have to move outside your comfort zone. और comfort zone की बात करें, एक बार आपको comfort zone से बाहर push करें. Everybody stand up, please. Let's do this. All right, stretch your arms out. Nice big smile on your face. Take a deep breath in, inhale. Hold and exhale. You must be thinking, Baba Ramdev ne to hotel management nahi ki hai. It works well. It just helps you to bring a smile on your face, be more centered in the moment. Take a deep breath in, inhale. Hold and exhale. 3rd time, do it as if you've just won $300 million in the lottery. Come on, show me some energy. If you just won $300 million in the lottery, you'll be like, yes. 4th time, you won $300 million in the lottery, but the person you hate the most won $1 billion. Now all of a sudden what will happen? You'll be like, ठीक है, मेरे को तो जो मिले वो ठीक है, उसको क्यों मिले? Right? Don't compare yourself. Before you sit down, just shake someone's hand on your right and left and remind them, don't compare yourself with another person. Say it and sit down, please. Don't compare yourself with another person. So the Sydney biodata story, the CV story, you have job, is a story of initiative. Learn to take initiative. You're all freshers, right? खरीद लिए शेफ नाइफ्स वगैरह वो सारा सामान? हाँ? खरीद रहे हो अभी? The whites and the dusters. I come from a family of doctors. और when I was living with my mama ji in sector 15, and उनको पहले ही बड़ा डाउट था कि कर की रहा मुंडा है होटल में। मेरी दादी गायनेकोलॉजिस्ट थी अपने टाइम में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। शी वॉज अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर, एंड शी गॉट टू नो होटल मैनेजमेंट। ओ क्यों था? मैं उनको बताया ये होता। थैंकफुली मेरी फैमिली एक वेडिंग अटेंड करने गई थी। उस टाइम पंजाब में लोगों को 5 स्टार होता नहीं था। शुगर है अब वो वेडिंग हुई ली मेरिडियन, उस टाइम ल मेरिडियन भी कहना नहीं आता था। ल मेरिडियन दिल्ली में वो वेडिंग हुई। एंड मैं कहा वो आपने देखा था ना, गए थे? हाँ हाँ, सोना सी होटल। What will you do there? You know, there are different areas and this is... वेटर बढ़ेगा मेरा पोतान। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होता। मेरे क्लासमेट्स आए और मैं एक्स कॉमर्स स्टूडेंट था। कितने कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? गुड जॉब। यू नो, तो कॉमर्स वाले तो स्पेशली परेशान हो गए। मतलब हाउ कम फ्रॉम अकाउंटिंग तो तुम मतलब अभी तो बावर्ची बनेगा, खाना बनाएगा, क्या होगा? एंड दे वर ऑल, long story short, my entire small town was full of confusion when I signed up for hotel management. पर मेरी लाइफ बदल गई। उनको क्या करना है? लोगों को जो सोचना है सोचने दो। You can never make other people happy. You can never do that. You must do what is best for you, right? And be a path breaker. Try something new. So the next story is about being dynamic. That's what this industry taught me. मेरी जो इंटर्नशिप थी एक प्रोग्राम, वो मैरियट, मैंने यूएस का बताया ऑलरेडी। मैं लैंड करके रूम में पहुंचा हूं। हमें गेस्ट रूम्स दिए गए यूज करने के लिए फॉर द फर्स्ट। दीज आर पर्क्स ऑफ द जॉब, यू हैव पर्क्स ऑफ द जॉब। शाम हुई, अनपैक किया है। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट, ऑलमोस्ट 35-40 आवर्स, दिल्ली टू लंदन, लंदन टू फिनिक्स। इमिग्रेशन क्लियर करके शाम को लगभग जब पहुंच के हम रूम में पहुंचे तो दरवाजे पे नॉक हुआ। एक्सक्यूज मी, यू गाइज फ्रॉम इंडिया? आई सेड यस, वी जस्ट अराइव्ड। व्हाट साइज आर यू? मुझे पूछता, आई एम 42. What size is the other guy? I said, 40. I have 2 banquet uniforms here. We have a big conference going on. Do you think you can help? You know what I said? Yes. Learn to say? Yes. Whenever there's a new challenge, learn to say yes.
I didn't know what we were supposed to do. New country, new hotel. I'm just coming off a flight. He brings two uniforms. And he said, we go to that conference room. 2000 बंदों की conference हो रही है, doctors की conference थी. हम दोनों को, और उसने काम भी ऐसा दिया, हम दोनों को उसने conference hall के सर entrance के बाहर map दे दिए, बोले you will guide people to their table numbers. And we managed to do this. Two of us successfully managed to do this in this very short span period of time. हमने वो रूम स्टडी किया, राउंड टेबल्स थे, टेबल नंबर्स देखे, we'd say, okay, straight all the way down, sir, to your right, to your left, etc. This is what this industry will teach you, and I promise you, no other industry can teach you this. You have a unique opportunity here to be dynamic, because most of the times, what our education system is focused on is a linear thing. Linear, समझते हैं आप? Step 1, step 2, step 3. ये industry आपको ऐसी situations में push करेगी that you will learn to be dynamic. You don't have to go linear from one to another. I've done handling drunk customers. Being a security person, being a bouncer, my GM would call me, hey, what's up? I said, I'm on my break. Somebody's beating up your bartender. What do? I'm not even dressed up. I'm sleeping. I'm in my bed. Mera hotel mein hi room hota tha. And I'm the F&B manager. And now what do? I immediately jump into my clothes. I immediately land into that situation where this big, stocky, muscular guy is threatening my bartender. He wants another trick. And he's abusing him. And there's 50 people watching, all eyes on me. What will the manager do now? Right? So what do? You haven't been trained for this thing. Ye industry aapko sikhayegi. Right? How to tackle those sort of situations. Some of you must be curious, what did I do? I said, okay, oh, you want a beer? I said, yes, I'm looking for a beer. I'm going to kill this man if he doesn't give me a beer. I said, okay, well, let's go take a walk outside. I know a really nice pub that opened there. Let's go for a beer there. So I very carefully escorted him first out of my premises, then out of my building. Then I took him out on the main road and I said, okay, now get lost. Right? ये चीजें सिर्फ यही industry सिखाएगी. You will learn to be dynamic. Interesting. Another one. It will teach you to be resourceful. I'm in UK, operations manager of a hotel. I just got married. My wife is coming from India. And this is what happens. This is how the picture plays. एक तो UK में बारिश बहुत होती. So it's very gloomy. It's a very little, small English town. छोटी property है, 60, 70 rooms की. I go in, we check in, and I've just received her from the airport, brought her with me. My Spanish waitress comes running up to me. She's Spanish and she has an accent. Sam. I said, what happened? The gents' washroom is overflowing. And this is a welcome to my wife. She's standing right there. She's looking at me as if she's thinking, have I made a mistake? इससे शादी करके मैंने गलती करी. What the hell is she talking about? I said, well, look, honey, this is what happens. I pick up the phone. There is a maintenance agency. I call them. I said, look, our urinals are overflowing. You got to do something about it right now, right at this moment. And it's taken care of. But what I'm trying to say to you is, वो embarrassment, वो lack of जो sense of pride है इस trait में, उसको दूर रखना अपने से. You have to be very proud of what you do. You have to take that sense of pride in what you do. And आप आज introvert हो, extrovert हो, मुझे पता नहीं है. But जब आप निकलोगे और अगर आपने absorb किया, इस industry का DNA absorb किया, you will change. मैंने इंडस्ट्री छोड़े मेरे को आज 15 साल हो गए हैं. कितने? 15. मैं सुबह अपनी मोटिवेशनल टॉक देने के लिए जब सूट पहनकर किसी भी होटल लॉबी में खड़ा होता हूं, लोग मेरे से ही रास्ता पूछने आते हैं. And I'm like, does it say Marriott Hotel? No, it doesn't. Does it say Radisson? It doesn't. I don't have a name tag. Say, you know where the conference is? Excuse me, the plates are finished on the buffet. I'm like, what the hell? Why me? I said, and you know what? Very interesting thing. I'll go to the captain or the restaurant manager. I said, plates are finished over there. Okay, sir, I'll get them right away. So you will leave the industry. The industry will never leave you. It will change your DNA, वो service mindset का DNA. और आप चाहे tourism में जाओ, airlines में जाओ, hotels में जाओ, that DNA will take you places. That service DNA. 8 साल मैंने होटल लॉबीज में खड़े होकर पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू. 15 साल मैंने स्टेजेस पर आके पूछा, सवाल वही था. रूप बदला, ढंग बदला, सवाल आज भी वही है, हाउ कैन आई हेल्प यू. दिस इज व्हाट इट टीचेस यू. वो सर्विस और
किचन वालों की जब फाइट हो रही होगी, बाहर कस्टमर वेट कर रहे हैं और ये लड़ रहे हैं दोनों, शेफ कहता आज तो मार ही दूंगा इसको नहीं छोड़ूंगा, ये समझता। आई हैव हैड दिस फर्स्ट हैंड, यू नो, आई एम इन द यूके। हमारे जो डिश वॉशिंग के इंचार्ज थे वहां पर, वो यूपी के बड़े नामवर बंदे थे, राइट? और वो डिश वॉशिंग के इंचार्ज हैं आज, पर उनकी जो सेंस ऑफ सेल्फ के साथ ये चीज अभी रिकनसाइल नहीं हुई थी। तो थोड़े थोड़े टाइम तेरे को पता है, तू वही का है ना, उस शहर का है ना, तू देख, ये तो लंदन में आ गया तो क्या हो गया है तेरे को तब। और वो सबसे एवरी डे, यू नो, देयर यूज्ड टू बी दिस इश्यूज, हाउ डू यू हैंडल समथिंग लाइक दिस व्हेन योर एग्जीक्यूटिव शेफ इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय समबडी लाइक दैट, राइट? यू लोग कहते हैं आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लॉट कंपनीज कॉल मी, कैन यू कम इन फॉर कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग? आई सेड ऑफ कोर्स। एक तो मैं एक ही घर में रहता हूं जहां मेरी मम्मी और मेरी बीवी साथ रहते हैं, तो नेचुरली पीएचडी है मेरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। दूसरा, मैं होटल इंडस्ट्री से आया हूं जहां पर हमेशा डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, वन डिपार्टमेंट टू दी अदर। मैं नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। सबसे मुश्किल चीज ये होती है, बेटा खोल देंगे प्लीज। सबसे मुश्किल चीज होती थी किसी जमाने में पानी की बोतल मंगवाना, फ्री में मिलती है ना, टिप भी नहीं मिलती। रूम में गए, मेरे जैसा बंदा ज्यादा पानी पीता है, तो हाउस कीपिंग बोल, नहीं सर, इस रूम सर्विस, रूम सर्विस नहीं सर, हाउस कीपिंग नहीं सर, रिसेप्शन पे मिल जाएगा, आपको मिला नहीं, भिजवा दिया, यू नो, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दैट। सो यू लर्न लीडरशिप, you learn team building. You will be ready to flourish in any profession provided you have the right mindset. So I congratulate you on being in this industry. It's good to be back for me here. Last में इसी ऑडिटोरियम में जब यहाँ कारपेट नहीं लगे होते थे और इतना दिखने में अच्छा नहीं था, by the way, you know, round of applause for the institute, the progress they have made. ये मेरा लास्ट था, इसी रूप बदल गया इसी ऑडिटोरियम का। अभी इनॉग्रेशन ही हुई थी, सारा कंक्रीट का था, और मुझे किसी ने आईएचएम, मिस्टर आईएचएम भी बनाया था उस टाइम में, 1999। दैट्स मी। और स्टेज पे खड़े होकर बातचीत करने की तो तभी से आदत है। दैट्स मी डिलीवरिंग अ टॉक समवेयर, वेरी पैशनेट एज यूजुअल। यू गॉट टू बी पैशनेट इन लाइफ, यस और नो? हाँ, ये जो बॉडी लैंग्वेज कुछ लोगों की मुझे नजर आ रही है ना, find something else to do, then this industry is not for you. या तो ये बॉडी लैंग्वेज बदल लो या इंडस्ट्री बदल लेना, या खुद को बदल लेना। बेटर है खुद को बदल लेना, हर जगह काम आएगी। फुर्ती होनी चाहिए आपके शरीर में। फिर ये इस इंस्टीट्यूट के बंदे बड़े विजनरीज हैं। किसी ने मुझे मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दे दिया, और उस समय सबने कहा है इसको मिल रहा है। आज मैंने उनको ग्रुप में बताया मॉर्निंग में, है तुम फ्यूचर भी देख सकते हो। ये जिसने भी दिया था वो बड़ा अच्छा फ्यूचर का प्रेडिक्टर था, राइट? मैं 96, 99 में चाहे डेडिकेटेड नहीं था। आई वाज अ नोटोरियस स्टूडेंट, आई विल टेल यू दैट, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। माय पर्पस हियर इज टुडे टू you don't repeat the mistakes that I repeated, but somebody was able to look into the future, right? So I'm so happy. कुछ चीजें, विजन ऐसी चीज है दोस्तों, और खुद के लिए भी बनाइए। Have a vision for yourself, which might not be true today. When I received this award, most dedicated student of the year, जो मास बंक्स ऑर्गेनाइज कर रहा था उस टाइम में, राइट? एंड आई वाज लाइक, यू नो, बट थैंक यू whoever gave it to me, thank you so much, so kind of you. But this is what it is. जब आपका विजन अपने लिए आज की लेवल से ऊपर होगा तो एक मैजिकल चीज होने वाली है। You will live up to that vision. You getting me? जहां आप हैं, आपका ख्वाब अगर इससे नीचे है तो भी एक दर्दनाक चीज होने वाली है, आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। और जहां आप हैं, अगर आपका विजन इससे बढ़कर है तो एक जादुई चीज होने वाली, आप उस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। क्रिएट अ विजन फॉर योरसेल्फ। हेलन केलर एक ऑथर थी, हु वाज ब्लाइंड। उनसे पूछा गया, हेलन यू कैन नॉट स्पीक, किसी स्कूल कॉलेज की टॉक में, सॉरी, यू कैन नॉट सी, आप देख नहीं सकती, अंधी है। इज देयर समथिंग वर्स देन दिस इन लाइफ देन बीइंग ब्लाइंड? क्या इससे भी कोई बुरी चीज हो सकती है? यू नो व्हाट शी रिप्लाइड? Not having a vision for your life is worse than being blind. Not having a vision for your life is worse than being blind. Can you see yourself into the future? Yeah? Do that every day.
See yourself in the future. How do you see yourself? What kind of a person are you? What are you doing? What are your skill levels? What are your finances like? कहाँ रह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? What is your mindset like? चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, अपने आचरण से महान होता है. जब सोच के लेवल को हम एलिवेट कर देते हैं, जो भी लाइफ में राइज करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें. और राइज करने की पहली शुरुआत सोच से होती है. With better thoughts about yourself, about the world, you're able to go to better levels. Some people have a pessimistic opinion about life. कुछ नहीं होने वाला. हमारे एक मित्र हुआ करते थे. एक एसोसिएशन है, आपको पता है दुनिया में, उसका नाम है GCA. सुना है इनके बारे में? नहीं? ग्लोबल कंप्लेनर्स एसोसिएशन. ये हर वक्त, और स्टैटिस्टिक्स पता क्या कहते हैं? 1 out of 2 इज अ कांस्टेंट कंप्लेनर. सो अगर आप नहीं हैं तो अपने आसपास देख लो. कॉन्स्टेंटली ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ, मैं पैदा क्यों, हम पता ही नहीं है, इस देश का कुछ नहीं होने वाला, तेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये देख प्रूफ नहीं होने वाला, मैंने कहा था नहीं होने वाला, सब कुछ खराब है, नहीं होने वाला. राइट? ये क्या है? ग्लोबल कंप्लेनर्स एसोसिएशन. इनसे बच के रहना. हमारे एक मित्र हुआ करते थे होटल मैनेजमेंट में, पता नहीं की बेकार चीज ले ली, कुछ और कर लेता. नहीं यार, बहुत अच्छा है, देख कितने लोगों को मिल रहा है, कितना कुछ हो रहा है. अच्छा, एक एग्जाम्पल काफी होता है कई बार विजन के लिए. मैंने विजन की बात की. हमारे टाइम पे सर शेफ गिल हुआ करते थे मोरिया शेरटन में. ओनली एग्जाम्पल हमें सुनने को मिलता था. उनकी सैलरी ना 1 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा है. It's like one example every IHMite in across the country would know. Chef Gill. I met him at a function. I said, Chef Gill, आपकी वजह से पता है कितने लोगों की नैया पार हुई है. कितने, मेरे को समझ नहीं आया क्या कह रहे हो बेटा. मैं कहा आपकी सैलरी सर किसी जमाने में 1 लाख थी, 96, 99 में. आई एम नॉट श्योर सर, पता नहीं थी कि नहीं, पर र्यूमर जरूर थी कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा है. और जो आशावादी लोग होते हैं ना, वो ऐसी एक चीज को पकड़कर आगे बढ़ते रहते हैं. जो आशावादी थे, तेनों पता है शेफ गिल दी सैलरी 1 लाख रुपए तो ऊपर ज्यादा, 1996, 99, एंड सो मेनी पीपल वर हैंगिंग ऑन टू दिस. द नेगेटिव पीपल वुड से नहीं, कुछ नहीं होने वाला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दे ग्रेजुएटेड. एंड देन व्हाट हैपेंड? What you believe is what happens in your life. Nothing happened for them, right? Other people got nice jobs and they were still like, मैंने कहा था ना मेरा कुछ नहीं होने वाला. Said, wow, congratulations. इसे psychologists self-fulfilling prophecy कहते हैं. क्या कहते हैं? Self-fulfilling prophecy. मैंने prediction की, अब मैं ही सही prove करूंगा उसको. कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला. फिर एक दोस्त था हमारा, उसने रेस्टोरेंट खोल लिया जाके, यूके में बड़ा कामयाब हो गया. उसने कहा तू यूके आ जा यार. तो हर वो कहता रहता इंडिया में कुछ नहीं होने वाला, इंडिया में कुछ नहीं होने वाला. उसको पासपोर्ट बनवा ले. वहाँ रश बहुत होता है यार, लाइन बहुत लंबी लगती है, डिलेज बहुत होती हैं, कौन जाएगा, फॉर्म भरना नहीं आता. हमने उसको फॉर्म भर के ला दिया. ये ले फॉर्म, अपॉइंटमेंट भी आ गई, पासपोर्ट बन गया. उसे जॉब नहीं मिलनी यार, नहीं होना, उसको जॉब भी दिला दी, जॉब लग गई, यूके पहुंच गया. हमने कॉल किया, यार दिस मस्ट बी योर ड्रीम कम ट्रू, यू मस्ट बी एक्साइटेड. नहीं, इतने बारिश बहुत पैती है यार, इतने मौसम बहुत खराब है यार. ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ MBA ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਯਾਰ. ਸੈਟ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਲੇਟਰ. ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ? You got to look to the brighter side of life. These are some of your bright lights from 96, 99. Some, let me tell you, that's Srijan Vadera, General Manager of Conrad, Bengaluru. Rachit Goyal, General Manager of Radisson, somewhere in Rajasthan. This is Amarjot Randhawa along with MS Dhoni and Chef Ishtiaq. He runs a chain of restaurants in the UK. That's Guneet Singh Bindra. He is the executive chef of a very big food company in the UAE in Dubai. That's Vishal Gupta, ex-Hilton. Manish Sharma, who went on to go to Amazon. He moved from the industry to go into IT. All of them, they send their best wishes to you. मैंने सबको कहा मैं IIHM चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अपनी इनपुट्स भेजो मुझे. All of them were so excited in their own way. They send their love and affection and their blessings to you, right? This is a bright group of people. You will find them everywhere. Let me tell you a little bit about my story as well. My story starts in Batala, district Gurdaspur. That's where I grew up. That's me on my dad's shoulder there. That's my grandmother, my dad, my sister. And I moved on, of course, sari photos nahi in between. And this is Marriott International. Remember the story I was telling you? This is the USA. When I was in the US, my dad was not well. He had cancer.
You know what I did? I made 3 trips back to this city. In fact, he was being treated at PGI. 3 बार वापस आया. चौथी बार मैंने वो PGI के डॉक्टर से पूछा. I said, what are the chances? He said, 6 months max. I went back. I told my HR manager, thank you very much. I will see you later. And everybody in my entire circle was, are you mad? I said, well, I'll deal with it. और ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ. अपनी values कभी मत भूलना. Stay grounded, stay humble. सब कुछ rebuild हो जाता है. सब कुछ rebuild हो जाता है. Character कम rebuild होता है. Parents दोबारा से नहीं मिलते. और ये जो समय, ये जो fully paid holiday है ना यहाँ पर 4 साल का, ये दोबारा से नहीं मिलेगा. Anyway, 2007, I decided कि मुझे कुछ और करना है. ये अब मेरे अंदर आ गए. होटेलियर्स कुछ भी कर सकते हैं. अब आप DNA absorb करेंगे ना इस इंडस्ट्री का, you'll do anything. I left my job in the UK. US के बाद फिर मैं UK गया, दुबई गया. 2007 ऐसे मुझे इस देश की मिट्टी को कुछ contribute करना है वापस. That is when I came back again and I started again from scratch, going to schools and colleges and giving talks about, the things that I had learned, right? Take charge of your life. That's what I'm saying. Take charge. You're the captain of the ship. Whatever direction you want, आप ले जा सकते हैं इसे. आप victim नहीं हैं. System के, किस्मत के. किसी शायर में लिखा है, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाए. सोच को बदलो. नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे. कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं. दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे. दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे. शुरुआत सोच से होती है. You are the author of your own story. And it took me a long way, all the way to the United Nations as well. This journey, this career. This is what I learned. I became a man of many possibilities. And you should try doing that too. Not just a singular possibility, multiple possibilities. What you can do with your career, multiple things. आप क्या और कर सकते हैं. Not just, you're not limited to the role or to the uniform that you're in today. You have to become a person of many possibilities. Make unconventional decisions, embrace diversity, self-disruption. खुद को disrupt करते जाएं. उसका मतलब समझते हैं आप? Disruption क्या होती है? एक set pattern को break करना. That is disruption. This is self-disruption, which means driven by the same DNA, but dancing to? Everybody loud out together, please. Dancing to? DNA is the same. Beat can change, right? That's what you do on the dance floor. कोई jam party बोर्ड हुई कि नहीं अभी आप तक? होती है कि नहीं अब? Freshers की? होती है, right? So when the DJ plays, right? You know how it is. The beat changes, your dance changes, and that's how it is. So, what hotel management taught? And I hope what hotel management can teach you too. Work ethic. मैं किसी और इंडस्ट्री में ये चीज़ नहीं सीख सकता था कि अगर मैं अपने ऑफिस पहुंचा हूं और मेरा टेबल गंदा है, मैं अपनी जैकेट उतारूंगा, स्लीव्स फोल्ड करूंगा, किचन में जाऊंगा, कपड़ा लूंगा, गीला करूंगा, आके अपना टेबल खुद साफ कर लूंगा. ये मेरे को कोई और इंडस्ट्री ने नहीं सिखाना था. Right? This my own industry has taught me. Service mindset. How can I help you? It's everywhere now. It's embedded in me, right? Still no logos, but still people come to me for help. Patience. And you will need it. You will need loads and loads of patience. ये जो success stories देखी थी ना आपने, 23 साल लगे इनको. वो फिल्म भी थी ना एक 20 साल बाद, लोग उससे भी आगे 23 साल बाद, right? So what you see, but you meet one of these people, आपको लगेगा नहीं यार ये तो कॉलेज में एक GM मटेरियल था. और गलती मत कर लेना उनके टीचर से पूछने की कॉलेज में ये GM मटेरियल था कि नहीं. उनके सबके पर्दे पास होने वाले, हम सबके, राइट? ठीक है. तो कॉलेज में कोई GM मटेरियल ऐसी वाली कोई चीज नहीं होती. You go through that process. Patience, you will need a lot of it. To understand, in the beginning, this industry will not pay you very well. There'll be long hours. There'll be difficult work conditions. But if you stick to it, you will become something remarkable. That's what I'm trying to say here. Communication skills, the ability to start new conversations. Hey, how are you? How are you doing today? No other industry will give you that confidence. Most people will just look at their computer screen. They have somebody new. Oh my God, somebody new in the office. Look at computer screen. Hide. Hotelier, somebody new in the office. How's it going? My name is Simerjeet Singh. What is yours? This is industry will teach you that, right? Problem solving skills, agility, flexibility, interpersonal skills, how to develop relationships, how to network. I go into a party and I look from one corner of the room to the other and I just do a quick sweep. Here are these 50 people that I know and how I have to go and meet all 50 of them in the next 5 minutes. मेरे बाकी सारे वो जो non-hoteliers होते थे like lost.
I said, okay, don't go at my speed. You won't be able to match. मैंने वहां से लेकर वहां तक 50 लोग जो मेरे को जानते हैं उनको मिलके 10 मिनट में सबको मिलके मैंने निकल भी जाना है. And that's this industry teaches you that. Becoming a better husband. Yes, Shivani ji is saying yes. All right, so becoming better husbands and better wives, yes or no? I mean, what more can you ask if your husband can cook and clean and dress up nicely and ask you, how can I help you? Right? That is a gift. But ये यहीं पे मत शुरू कर लेना. ये मतलब ये शादी.com नहीं है. AIHM चंडीगढ़ है. मेरे को पता है ये फ्रेशर्स में बहुत होता है. शुरू नए आए जोड़ियां बनाने शुरू कर देते हैं. Right? And you will waste your life in that. This is not shadi.com. Focus on your careers now. All of these things will happen later, but you will become a better spouse, a better partner, because you will not be, you won't do that. You know how to get up and do something on your own, handling difficult situations, you know. I've done all sort of jobs in Sydney, Australia, all sort of jobs. Gas station attendant, night shift. जहाँ जो लूटने आता है वो गोली मारता है सीधा और कुछ नहीं होता. Right? That's it. If they come in the evening and you have this bulletproof glass in front of you, पैसे अच्छे बनते थे उसमें, ठीक है? कुछ दिन के लिए किया, but you get these experiences. Bouncer, security person, whatnot. And I've done all that courtesy of the industry because it's taught me these things, how to handle difficult situations. It gives you a good taste, this industry. Yeah? And that you will make other people's life difficult. Shivani ji, am I right there? Right? You're like, नहीं, ये spoon 45 degree angle पर जाता है. Right? ये cup का ये जो handle है, why is it on other side? It should be on this side. Espresso, इसके ऊपर वो नहीं है, crema layer नहीं है coffee के ऊपर. What kind of coffee is this, right? But you will develop good taste. You will learn to pronounce how to French names correctly, right? And those are some of the things. Manners and grooming, holding the door open for other people, courtesies. It will teach you, it will transform you. And then you can plug into, you can succeed in this industry or any other industry. Most importantly, it will help you make bold decisions in life because coming into hotel management was a bold decision, yes or no? For how many? Raise your hands, be honest. Yeah, for me too. जब मैं कॉमर्स छोड़ के बीकॉम फर्स्ट ईयर सीए और वो मैंने और कितने कोर्सेज में एनरोल कराया हुआ था और मैं इंटरव्यू देने आया, पूरी सर इंटरव्यू सी गए. कैंपस यहाँ पे हुई थी कि 36 में हुई थी शायद, मेरे को याद नहीं, शायद यहाँ पे हुई थी इंटरव्यू ठीक गई. मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैंने टेस्ट दे दिया है. वो सारी स्टोरी यूट्यूब पर है, मैं आज नहीं सुनाऊंगा, सुन लेना. मैंने टेस्ट दे दिया, टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू पे पहुंच गया, इंटरव्यू अच्छी हो गई. We sir पूछते which center would you want? IHM गुरदासपुर सीगा नहीं उस टाइम तक. मैं कहा please if you can give me IHM Chandigarh. Okay, we'll think about it. Letter comes to my home, admission offer. Nobody knows in my home what this thing is. Hotel management. But thank God इसमें management word है. Right? They were like, okay, right, good job, right, go for it. तू यहाँ से निकल, तेरी कंपनी वैसे भी खराब ही है आजकल. Right? तो घर वालों ने भी कहा जा. It was a bold decision leaving all that behind. उससे ज्यादा बोल्ड डिसीजन था इसी कैंपस में 3 साल होटल मैनेजमेंट पढ़ी, वाइन्स पढ़ी, बियर की स्टडी की, फूड प्रोडक्शन, सारा कुछ करके इंटरव्यू लेने आया जी कैपिटल. सुना आपने? नहीं सुना होगा. 1999 में इंडिया में बीपीओ इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी. उनको चाहिए थे कॉल सर्विस एजेंट्स जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकें. दे हैड नोवेयर एल्स टू गो बट गो वेयर. या क्योंकि यहाँ के लोग क्या जानते हैं? हाउ कैन I don't hear it. So this is very smart lady. She came from Gurgaon and हम ताज में selection नहीं हुई. हाँ, I had an Oberoi offer letter at Rajvilas. But we had interviews and it was interesting. And can you ये script देते थे, पढ़ के सुनाओ, ये करो, वो करो. सुबह इंटरव्यू शुरू हुई, शाम के 8 बजे तक. और 6600 रुपीस की जो फर्स्ट जॉब ऑफर लेटर थी मेरे हाथ में आई. GE इंटरनेशनल कैपिटल सर्विसेज. मेरे शहर में और कंफ्यूजन हो गई. पहले होटल मैनेजमेंट करने गया था. जी तो बल्ब ना दे, तुम मतलब कितना मतलब कर क्या रहा तुम? कर क्या रहा है? तो वो तो I told them no, it's they're a call center. What will you do there? You're gonna cook food there? No, I will take calls. That was another bold decision. I straight went into that and I flourished because I had what? Service mindset. And that's what you need in the customer service industry. You don't look at it just as a separate segment. This is airlines, hotels. This is the what industry? Service industry. You go to a bank, tell me,
दो लोग हैं, दो काउंटर्स हैं. One person is smiling and cheerful, nicely dressed, smells nice, looking at you in the eye, and desk is clean. The other one is angry, grumpy, and not well dressed. और वो वैसे फ्राउन कर रहा है, उसने लगाया हुआ है हाउ कैन आई हेल्प यू पर ऐसे बैठा हुआ है. आप किस डेस्क पर जाएंगे? राइट. एंड व्हाट्स दैट? सर्विस इंडस्ट्री. चाहे वो बैंक है, द प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. थिंक बिग, थिंक डिफरेंट. So, bold decisions, these are the few things that hospitality taught me. I hope it can teach you too. Couple of mistakes. Chetan Bhagat ने book लिखी थी ना, 3 mistakes of my life. मैं वो book नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो encyclopedia में भी mistakes पूरी नहीं आएंगी. But the good part is, you don't have to repeat my mistakes. Hello? You don't have to repeat. That's the beauty of life, right? You should learn from दूसरे लोगों को करने दो ना गलती. उन्हें कर ली, उसने भुगत ली, आप उसका बेनिफिट उठाओ, so that you don't get stuck into that. So my first mistake was this, poor time management. अगर मैं 3 साल की, अगर मेरे को दोबारा से मौका मिला यहाँ बैठने का, ये जो सबसे बड़ी रेक्टिफिकेशन है वो मैं टाइम मैनेजमेंट की करूँ. आपकी टाइम और एनर्जी आपके सबसे प्रेशियस रिसोर्सेज हैं. यूज देम केयरफुली. पैसे को संभाल के रखते हैं, राइट? फोन्स को संभाल के रखते हैं. क्या वेस्ट करते हैं? टाइम, एनर्जी. वेरी प्रेशियस. Become a T-shaped learner. A what? What does a T-shaped learner mean? So T is like एक लाइन ऊपर ऐसे जा रही है, एक डीप जा रही है, right? जो लाइन ऐसे डीप जा रही है, that is your expertise of the subject. For example, the people here in the chef course. आपकी T-shaped learning क्या होगी? To go deep into culinary science. You with me? Yes? People in the service or some other departments, give me housekeeping, raise your hands. Where are you? Are you, right? You're all mixed up. You're freshers. Sorry, I do apologize. But let's say you're into housekeeping. Your T-shaped will be going deep into everything about hospitality. ये हो गया मेरा subject matter की expertise. Now, जो दूसरी line है T की, ये मुझे दुनिया में पता होना चाहिए क्या हो रहा है. मेरी सोच केवल किचन तक सीमित नहीं होनी चाहिए. I should be aware of what's happening in the entire world. What are the broader trends? This is called becoming a T-shaped learner. Be a master of one and then have an overview of what is happening in the journal economy. With me on this? This is very powerful learning process. Create to-do lists. Spend time on networking. How many of you have LinkedIn accounts? Yes or no? So can we change that by the end of today? Can all hands go up by when we finish? Is that a yes? Every single one of you create a LinkedIn account. There are thousands of AIHM Chandigarh alumni out there who are doing very well. Connect करना शुरू करो यार उनके साथ. आज से शुरू कर लो. Don't wait कि वो 4th year में जाके 3rd year में जाके I'll do that. No, start that today. Spending time networking, really important. Have a vision, target, to-do lists. Know what you're doing with your time. दूसरी गलती ये थी. ये सवाल अक्सर पूछना. What is the purpose of learning French? बोलता नहीं क्या है? French है ना बेबी करिकुलम में? नहीं है? Part of it. ये हमारे साथ तो बहुत ज्यादती की फिर. हम part of it. My goodness, समझ आती नहीं थी. English handle कर लो काफी है. French लगा दी और उसमें हर चीज का वो जो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. टेबल मेल भी हो जाता है, फीमेल भी हो जाता है. दोनों याद. माय गॉड, अंजू शर्मा मैडम आते थे. सच वंडरफुल टीचर. मैंने उनको वीडियो पे माफी मांगी हुई एक बार. मैं कहा मैडम माफ कर देना, आपकी क्लास में सबसे ज्यादा रक्कस मैंने क्रिएट किया. और मैं आज जाता हूँ ना इंटरनेशनली कहीं पर भी मैम, और वो जो मेन्यू पे देखता हूँ ना, ये बोर्डू कुछ नहीं होता है. इस बोर्डू तो मैम ये आपने ही सिखाया था. ये शातू नहीं होता है. इस शातू ये आपने ही सिखाया था. कुछ चीजें बाद में समझ आएगी. अभी ट्रस्ट करें कि जो भी सिस्टम बना है कुछ सोच समझ के बनाया गया. ये हमने गलतियां की, आप मत करना. क्लीनिंग एसी फिल्टर्स है अभी कि नहीं? प्रैक्टिकल नहीं है. हमारे में प्रैक्टिकल भी करवाते थे. मनजीत सिंह सर होते थे. मनजीत सिंह बलजीत सिंह सर. तो हमने कहा एसी फिल्टर निकाल के साफ करना है. घर जाके की दसिए की पढ़ाई कर. बेटा क्या चल रहा है इस सेमेस्टर में? इस सेमेस्टर में पापा एसी फिल्टर में जो कुछ नहीं, अकाउंट्स चल रहा है. ओके गुड, लेट इट बी दैट. बट आज क्या फायदा है उसका?
एसी वाला आता है, सर्विस करके जाता है, फिल्टर नहीं क्लीन हुआ है, इधर आ बेटा। We've been there, done that. Be somebody. स्क्रैच से शुरू करने में मजा आया है। क्या है? क्योंकि तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता बाद में। जिसने हाथों में प्लेटें उठाई हैं ना, खुद क्लियरेंस की है, ठीक है, इतनी इतनी प्लेटें की, ये जो छोटी फिंगर होती है ये भी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इस पे सपोर्ट होती है ना, सारे वो स्टैकिंग करनी होती है। यू नो, योर फोरआर्म बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड देन पीपल कैन नॉट टेक यू फॉर अ राइड। जो मैनेजर इस प्रोसेस से नहीं गुजरा उसको मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होगी, ये याद रखना, शॉर्टकट नहीं है कोई। वंस यू गो थ्रू इट, फिर आपका बेवकूफ नहीं बना सकता कोई। अकाउंट्स, वेरी सिंपल, व्हाई डू आई हैव टू स्टडी अकाउंट्स? एंड थैंकफुली आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट, वाज इजी। मेरे जो नॉन मेडिकल के फ्रेंड्स थे वो तो घबरा गए अकाउंट्स देख के, पर आज वो सब कहते हैं हमारे टैक्सेस करने आसान है, हमारा कितने और काम करने आसान है, क्योंकि हमने अकाउंट्स सीखा। कंप्यूटर्स में मैंने क्या किया, एक बार आज पा दो सारे सीक्रेट यूट्यूब पे। एक बार कंप्यूटर की लैब का प्रैक्टिकल था और कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था हमारे ग्रुप में, सी ग्रुप, मोस्ट नोटोरियस ग्रुप। प्रिपरेशन नहीं है, प्रैक्टिकल। इधर लैब होती थी, जहां आपके अतिथि रूम है ना, वहां पे लैब होती थी। तो आप जानते हैं कि बायोस का पासवर्ड होता है, वो उस जमाने में हुआ करता था, व्हेन अ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देयरफॉर गेट आईटी नॉलेज। हाउ मेनी ऑफ यू हैव आईटी नॉलेज? रेज योर हैंड्स। You want to flourish in this industry, be very, very good at computers, I'm telling you. Very good at computers. You can go far. Whatever, whether you're in the kitchen, wherever you are, get good at computers. Anyway, so what I did, there is something called BIOS, Basic Input Output System. CPU has a password, जो उन लैब में सभी computers पर password set नहीं हुआ। So I said, okay, what are you guys treating me to? I said, okay, we'll take you, क्या था वो? यहाँ पर फौजी ढाबा हुआ करता था एक, हैं जी? हाँ, वो तो बेकार सा था, पर अच्छी जगह सेक्टर 22 में होती थी। तो सारे ग्रुप ने मेरे को वादा किया, भाई हम तेरे को ट्रीट देंगे वहां पे। मैंने जाके सभी कंप्यूटर्स के जो सीपीयू पासवर्ड है वो चेंज कर दी। आपने नहीं करने ऐसे काम। प्रिंसिपल सर सोच रहे हैं इसको बुला के गलती करनी। घोष जी आपकी शामत आने वाली है। इसको क्यों बुलाया? नहीं, सुधर के आऊं मैं। और इसमें मैंने गलतियां की, आपने जरूर करनी। तो वो कंप्यूटर वाले मैम गए, पहला कंप्यूटर ऑन किया, चलो रोल नंबर देस, प्रैक्टिकल, कंप्यूटर ऑन किया, एंटर पासवर्ड। मैं कहता ये तो पहले कभी आया नहीं, पासवर्ड किसको पता है? मेरे को। लुकिंग एट ईच अदर, शट अप, डोंट लुक एट मी, राइट? एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, we did not have computer practical. Next day I was nice, I came in, I removed the passwords and I had a nice treat, right? So interesting part, I go to Dubai and I work at the Grand Hyatt. और you know क्या हुआ कि जो मैं कैफेटेरिया में खाना खा रहा हूँ, मेरे को आके ना, जो आई वॉज असिस्टेंट मैनेजर देयर, मेरे को आके पहले जो लोग आए हैं आके कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वर्किंग विद सैयद जाकी, योर बॉस। और उसके ऐसे टोन होती है ना कॉन्ग्रेचुलेशंस की, जिसमें आप समझ जाते हो कि ये खुशी वाली बात नहीं है कोई की। जर्मन लड़का था, मैं कहा ओके थैंक यू। फिर वो, oh you with Sayyid Zaki in room service, congratulations, you have a very nice boss. I said, well, it doesn't seem like it. There's like क्या टेरर स्टोरी है सैयद जाकी की। इजिप्शियन बंदा था और ग्रास रूट लेवल से इमर्ज हुआ था। He was not your polished होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, ग्रास रूट लेवल से राइज करके वो रूम सर्विस मैनेजर था और मैं उसका असिस्टेंट था। टेरर था उसका, पता नहीं किस बात के लिए, मेरे को नहीं पता लगा। आई लुक एट थिंग्स पॉजिटिवली। इफ यू गो विद दैट माइंडसेट, टेरर है, टेरर है, टेरर है, तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। आई वेंट विद एन ओपन माइंड। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेरर को हमने कैसे कैप्चर किया? टेरर को कंप्यूटर्स नहीं आते थे और हायत में सब कुछ एक्सेल में फीड करो, सब कुछ ये करो, सब वो सारे उस टाइम वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम शुरू हो गए, माइक्रोस आ गया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम से, was half of his time was on IT. So then he would come to me, Sam. He used to call me Sam. Can you do this for me? Do you think? Uski tone change होती थी, can you do this? I said, well, okay, I need Tuesday, Wednesday off, right? Would barter something. Long story short, me and Zaki had a very good association. वो बॉस तो सबके लिए टेरर था, मेरा मेंटोर बना और उससे मैंने वो सीखा जो कभी मैं पॉलिश्ड वाले वो जो यूरोपियंस से उनसे वो चीज़ नहीं सीख पाता। And it was only courtesy to one thing, have an edge over the others. क्या है? Have an edge over others. My edge was I knew computers very well. So I was able to, if you can help your boss with that, you're going to fast track your career. Those are some very important things. Food science, making a bed, things like that. You will all be wondering at times, why do I have to do it? Go with the flow. Immerse yourself. Take a deep breath in.
Say out loud, I will. Louder, please. I will immerse myself in the learning experience. Only then you grow, only then you learn something, right? The language that you learn, everything that you learned it by immersing yourself, not by questioning it. अगर हम हिंदी, पंजाबी, जो भी जुबान अच्छे से बोल लेते हैं, उसको आप अच्छी इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि आपने उसके सीखने की प्रोसेस में कभी क्वेश्चन नहीं किया, ये क्यों है? You went with the flow, and that's how you learn any sort of skills. So, I hope my experiences were able to give you some inputs about the future. Yes, depending upon time, we'll do a little Q&A as well later on. पर मैं इस चीज पर क्लोज करना चाहता हूं कि सबसे अहम चीज क्या है आउट ऑफ ऑल द डिस्कशंस दैट वी हैड. अच्छा, ये एक्टिविटी हमारी रह गई थी. इज दिस फॉर द फर्स्ट फ्रेशर हु विल कम एंड टेक इट? Alright. Okay, stay. And somebody move from there. You also can you give a round of applause for these two people also? Congratulations. पर ये याद रखिएगा, हर बार आप उठ के जाएंगे, हर बार गिफ्ट नहीं मिलेगा. और मेरे दूसरे दोस्त जो, आप ये याद रखिएगा, हर बार नाकामी नहीं मिलेगी. पर 300 में से सिर्फ 3 लोगों ने हिम्मत की. जिंदगी में भी रेशियो यही रहती है. इसलिए 3 आगे निकल जाते हैं. 2 को एक्सपीरियंस मिला, ऐसा एक्सपीरियंस मिला ना आपको तो दूसरे और शख्स छाप आपके माइंड के ऊपर रह गई है कि नेक्स्ट टाइम तो मैं लेकर रहूंगा. राइट? लाइफ में भी ऐसे ही होता है. 3 उठते हैं, 1 कामयाब होता है, बाकी 277 जो रह गए वो बैठ के बातें बनाते हैं. मेरा लक ठीक नहीं था, प्लान हो गया, एक्सक्यूजेस, विक्टिम स्टोरी. हम विक्टिम, मेरा तो कसूर ही नहीं है. किस्मत का कसूर है, संसार का कसूर है, माँ बाप का कसूर है, स्कूल का कसूर है, अच्छे स्कूल नहीं, इसमें कुछ तो और होगा, मैं नहीं हूं. मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो बैठा हूं, आज यहां पहुंच गया हूं. बैठने से कुछ नहीं होगा. Learn to take initiative. Okay? So the most important thing in the concluding part of my talk, the most important thing is your mindset. In the conclusion part of my talk, here are some stats about the industry. Tourism hospitality expected to go up to $50 billion from the current 28.9. It's a great industry to be in right now. Travel market, read out the second one, please, everybody together. 1, 2, 3. FY is financial year 27 from estimated $75 billion currently in 20. Now, when will you graduate? 25, 23. Come on, 25, right? So roughly around the time you graduate, listen, when I graduated in 1999, it was a different world. The hotel industry was quite different. When you graduate, it's going to be a different world. The question is, will you be prepared? That really is the question. Indian airline travel, very exciting. वर्ल्ड के जितने मेजर ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं इस समय एविएशन सेक्टर में नए प्लेन्स के लिए, ऑल द प्लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, वेदर इट्स विस्तारा और वेदर इट्स एयर इंडिया और वेदर इट्स इंडिगो, ऑल ऑफ देम projected to double in size by financial year 27. Think about that. Indian hotel market to grow to USD $52 billion from the current $32 billion. We have not even explored tourism. As the country improves its infrastructure, travel improves, mobility improves, aviation improves, this industry is going to flourish. Question is, how will you find your place in this? And that will largely depend upon you. Growth story. So in saying goodbye, I give you my freshers 5, right? Freshers top 5. Can we start reading from here? I will maintain a, I will fully, I will work on my, I will get, Odyssey, right? I will develop, yes. You know, when your food production classes are going to happen and so many, you're like, oh my God, my legs hurt. When you go to the industry, I've been standing and today as a speaker or whatever, I mean, I travel so much और मेरे क्योंकि वो threshold इतना increase हुआ है ना, hospitality industry में काम करने के बाद बाकी सब कुछ बहुत easy लगता है. अच्छा बस 10 घंटे खड़ा होना है, no problem. I've done more than that, right?
So I will get practical experience, develop physical, mental, spiritual strength. This is very important. I will take charge of my learning. Enroll in additional courses, please, also. Very important. There are so many free courses available on Coursera, so many other places, Harvard lectures online, whether it's communication skills, negotiation, whatever you need, you can sign up and attend the best courses. So it's not only a one-way process. That's the biggest thing. It's not only a one-way process. It is, you are very much partners of it, right? So I'll give you a QR code to stay connected with me, but would you like to listen to a story before I finish? Yeah, another story? Yes, another nice one? All right, good. You know, एक बार एक यंग बिजनेसमैन था, 27-28 साल का, और मुंबई की कहानी, क्लिफ थी, एक क्लिफ पार्क था वहाँ, क्लिफ थी और नीचे समुंदर था, और नीचे ये समुद्र की तरफ देख रहा था, काफी उदास लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से। उदास पर्सन की बॉडी लैंग्वेज कैसे होती, दिखाएंगे आप? शोल्डर्स stooping, eyesight on the floor, breathing shallow, and is looking into the water. He looks very, very sad. Waves are crashing against the rocks. रियाद में बहुत ही दुख में लग रहा। पास से एक बुजुर्ग गुजर रहे हैं, सुबह का सामान, जॉगिंग कर रहे हैं। उन्होंने इसको देखा और बोला, बेटा, is everything okay? कहता नहीं अंकल, आप चाहिए, लंबी कहानी चाहिए, डोंट बॉदर, माई पर्सनल थिंग। नहीं, तो मुझे काफ़ी उदास लग रहा है, कुछ लग रहा है कुछ गलत करने वाला है। कैन आई हेल्प यू विद समथिंग? नहीं अंकल, नहीं, मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां आप सॉल्व नहीं कर सकते। बेटा बताओ तो सही क्या है। काफ़ी उसके जोर देने के बाद इसने अपनी लाइफ की दुख भरी कहानी सुनाई, कैसे इसने अपने सारे पैसे अपने बिजनेस में लगाए थे, बिजनेस फ्लॉप हो गया, बीवी छोड़कर चली गई, बच्चों से जुदा हो गया, हेल्थ खराब हो रही है, और आज सुबह सर यहाँ मैं सुइसाइड कमिट करने आया। अब आप जा सकते हैं। बेटे, सारी टेंशन तेरी मुझे पैसे की लग रही है। अगर पैसे की बात है ना, तो ये चेक रख। पॉकेट में से एक चेक निकालता है वो बुजुर्ग, उसके हाथ में एक ब्लैंक चेक थमा देता। मेरा नाम ना धीरूभाई अंबानी है, मैंने अपनी लाइफ में खुद पैसा कमाया, रिटायर हो गया हूँ। ब्लैंक चेक है, जितना लेना होगा ले लेना, जब देना होगा वापस दे जाना। ये कहकर वो निकल गया। अरे रुकिए सर, नहीं वो रुका नहीं, चला गया। इसने जैसे ही वो जेब से वो कागज का टुकड़ा निकाला, देखा साइंड धीरूभाई अंबानी, ब्लैंक चेक, सिटी बैग, और जो उसकी निराशा की बॉडी लैंग्वेज थी, धीरे धीरे तब्दील हो गई। यू हैव दैट, होता है ना कई बार ऐसे, लंबा सांस खींचते ना, एकदम से कोई अच्छी खबर आती है तो वे breathes in deeply and his body language changes. His eyes have sparkle, face has a smile, head is buzzing with ideas. Buzzing. ये करेंगे, वो करेंगे, पहले ये करता हूँ, पहले मीटिंग बुलाता हूँ, काम पे वापस जाता है। He's a transformed person. क्या है? Transformed. टीम पूरी डिमोटिवेटेड थी पहले, सबको बुलाकर कहता है, अब ना हमारे दिन बदलने वाले हैं, अब हमारा टाइम आएगा नहीं, आ गया है। अब वो तुम पुराना माइंडसेट छोड़ो, ऑर्डर लेने शुरू करो, प्रोडक्शन स्टार्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने देखा यार, आज तो बॉस की आंखों में अलग सी चमक है, कुछ सही हो रहा होगा। काम पर वापस गए, वो भी ट्रांसफॉर्म थे। एनर्जी इज इन्फेक्शियस। जैसे कोविड इन्फेक्शियस था ना, उससे ज्यादा इन्फेक्शियस है एनर्जी। टीम में भी एनर्जी आई, सबने ऑर्डर लेना शुरू किए। ये ऑफिस में बैठा, चेक को देखा, आज इसको कैश कराने की जरूरत नहीं, तो सिंगल शॉट है, वंस यूज कर पाऊंगा, अभी रख देता हूं, जिस दिन जरूरत पड़ी चेक इन कैश कराऊंगा। कुछ हफ्ते गुजर गए, टीम ऑर्डर ले रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, पुराने कस्टमर्स में भी कॉन्फिडेंस आया कि बिजनेस चल रहा है। महीना गुजर गया, चेक कभी भी लॉकर में। 6 महीने गुजर गए, चेक कभी भी लॉकर में है। ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स डिलीवर भी हो रहे हैं, मार्केट से लोगों ने पैसा भी देना शुरू कर दिया है, टीम मेंबर्स भी वापस आ रहे हैं, नई एनर्जी है, चेक कभी भी लॉकर में। साल गुजर गया, बीवी वापस आ रहे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चेक कभी भी लॉकर। 2 साल गुजर गए, अच्छी जगह पर बंगला है, गाड़ी है, हेल्थ अच्छी है, चेक कभी भी। तो एक दिन क्लीनिंग कर रहा था अपने लॉकर की, चेक निकाला, इस चेक ने तो मेरी जिंदगी बदली है, मैंने एम्स भी नहीं किया,
कम से कम उनका जाके थैंक्स तो कराऊं। इसको ये नहीं पता कि धीरूभाई अंबानी रहते कहाँ हैं, तो इसीलिए सुबह 7 बजे एग्जैक्ट उसी टाइम पर वही पहुंच गया, यही उम्मीद में कि वो आएंगे फिर से सैर करने और मैं उनको चेक विद थैंक्स वापस कर दूंगा। खड़ा हुआ है, 7 बज गए या 8 बज गए, धीरूभाई अंबानी नहीं आए। 9 बज गए, ये रेस्टलेस हो रहा है, धीरूभाई अंबानी अभी भी नहीं आए। 9:30 बजे के आसपास ये एक्सप्लोर करना शुरू करता है आसपास की डायरेक्शन में, और इस बड़े से पार्क में देखता है सेंटर में एक बड़ी सी इमारत है, इसको लगा अमीर आदमी है, इसका घर यहीं होगा। नॉक नॉक ऑन द डोर, सेड कैन आई कम इन। सामने देखता है एक रिसेप्शन काउंटर है, जैसे आपके रिसेप्शन काउंटर। इसको बड़ी हैरानी हुई है, घर में तो रिसेप्शन काउंटर नहीं होते हैं। फिर भी ये गया और किसके पीछे स्मार्टली ड्रेस्ड एक लेडी थी। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम लुकिंग फॉर मिस्टर धीरूभाई अंबानी, डज ही लिव हियर? She starts laughing. She says, "You too met Dhirubhai Ambani?" He's sort of embarrassed. Ma'am, आप हंस क्यों रही? यहाँ नहीं रहते हैं। कहती मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, ये है, ये जो बिल्डिंग है, this is a home for mentally disturbed people. हमारे यहाँ एक सीनियर सिटीजन रहते हैं जो खुद को धीरूभाई अंबानी समझते हैं और लोगों को ब्लैंक चेक काट के देते हैं। मुझे लगा शायद आपकी मुलाकात भी उन्हीं से हुई। स्वामी विवेकानंद said, the biggest sin in life, जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है खुद को कमजोर समझना। यह गुनाह मत करना, खुद को किसी से कम मत समझना। मेरी आशा, उम्मीद है, यकीन है, आने वाले समय में यही चेहरे अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री, होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, कन्वेंशन सेंटर्स में, एयरलाइंस की बिजनेस क्लास में, टॉप प्लेसेस में अक्रॉस द वर्ल्ड मेरे को यही चेहरे आने वाले सालों में नजर आएंगे। और मैं कल से एक बार फिर से कहूँगा कि मैं AIHM चंडीगढ़ का प्रोडक्ट आपको मिलकर। You've been a wonderful audience. Thank you so much. There are 2 ways to keep in touch. One is either the website at the bottom that will take you to the web, to all the social media, or you can scan the QR code, or maybe one person can do it and share it with others. That will take you to the podcasts and videos and all that. Learning must be continued. These experiences are good. You listen to me today, it's a good experience. But you must continue your learning. Learning never happens in a single sitting. Learning continuously chalni chahiye. So I hope you all keep in touch. And depending upon time, sir, we can take a few questions from the audience. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah. Good afternoon, sir. Thodi volume bata. Ji. Sir, my question to you is that you mentioned that in 2007 you decided to switch fields and you wanted to go on with motivational speaking. So, sir, what I exactly... knew this was going to come. All right. Sir, because I have the interest for the same. So I really wanted to ask you, what triggered that change? What induced that? Very smart question, and I applaud you for that, and put in very crisp and clear words. I appreciate you for that. So your question is, 2007, I switched the industry to be a motivational speaker and doing what I'm doing today. आप भी यही करना चाहती हैं? Is that what your question is? Sir, I just don't want to fit into a box. I want to switch careers in life and, go with the flow. तो switching कब suitable होती है? Sir, I feel like at a point where I feel I'm not giving enough to the industry, or I feel the sort of burnt out feeling. That's the wrong time to switch. Those are our weak moments. Do not switch at your weak moments, switch at your strong moments. The decisions you make in your weak moments will be wrong decisions. You will regret them later. 2 दिन काम करने, जल्दी ज़्यादा काम करना पड़ा, 16 घंटे की शिफ्ट हुई, रात को 1 बजे फिनिश किया, बॉस ने सुबह फिर 8 बजे बुला दिया, ये इंडस्ट्री मैं छोड़ रहा हूँ. Wrong decision, wrong time. पीक पर जाओ, उस इंडस्ट्री के पीक पर जाओ यार, तुमने उस पूल में छलांग लगाई है, उस गेम का तुम हिस्सा बने हो, अच्छे से अपनी खेलो तो सही बारी, फिर हम जाएंगे कोई और गेम के बारे में सोचेंगे. सो स्विचिंग एट ए वीक मोमेंट व्हेन यू फील दैट यू आर टू स्ट्रेच्ड, do you think life is easy as a speaker?
Absolutely not. What if I would quit this one day and say, oh my God, it's too much travel? Wrong. I will see two things. Switching पर आप focus मत लगाओ. When you're ready, you will know you're now ready for the next level. So don't focus on that. Right now, fully immerse yourself in whatever you're doing. जब वो कंटेनर से आप बड़े हो जाओगे ना, तो नेचुरली या तो कंटेनर तोड़ दोगे, ऐसा होता है. मैं गार्डनिंग बहुत करता हूँ. कितने लोग करते हैं गार्डनिंग? इफ यू ग्रो अ प्लांट एंड उसकी रूट स्ट्रांग हो रही है, और अगर गमला वो वीक था ना, तो कुछ समय बाद वो फाड़ देता है उसको, गमले को. उसकी रूट्स इतनी स्ट्रांग है, उसको कंटेन नहीं कर पाती. उस लेवल तक पहुंचो. फिर खुद ब खुद जो माली आता है ना, नया गमला, बड़ा गमला लेकर आता है, उसमें लगा देता है. सो डोंट फोकस ऑन स्विचिंग नाउ. Every difficult thing that you will go to will add to your character and your work ethic. I have so many stories to tell because I went through the struggle. अगर मैं उस समय switch कर लेता, मैंने बुखार में काम किया हुआ है, अपनी internship में इतनी बुरी हालत थी. Because I was in Delhi and I did not even get time to see a doctor because the shifts were so busy. I'll just take an antibiotic and take a paracetamol and go to work. But what happens? Once you stretch to that level, everything else suddenly becomes easy. जिस पर्सन ने लाइफ केवल इजी देखी है, उससे मुश्किल हैंडल नहीं हो पाती. और जो मुश्किलों से गुजरा है, उसको छोटी मोटी चीज़ें बॉदर नहीं करती. मैं जलंधर में आके मैंने अपना रेजिडेंस बनाया, और मेरी लाइफ में इतना ट्रैवल है, क्योंकि जलंधर से मुझे अमृतसर जाना पड़ता है या चंडीगढ़ आना पड़ता है टू कैच फ्लाइट्स. पर मेरे को ये 1.5-2 घंटे का ट्रैवल, इट डज नॉट इरिटेट मी एट ऑल, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, एंड दैट्स व्हाट स्ट्रगल विल गिव टू यू. It will give you the strength to go even further beyond. Yeah. Thank you so much, sir. You're welcome. Keep that in mind. You're welcome. All right. Maybe we can take another question if there is any. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. सर, जैसे कि आपने बोला कि हमें एक विजन चाहिए, एक पॉइंट अप. Vision. हाँ. और हमें अपने आप को फ्यूचर में एक पॉइंट पे देखना चाहिए. तो सर मतलब वो डिसाइड कैसे करें कि वो पॉइंट पे ही हमें चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम उससे ज़्यादा के लिए भी बने हैं कि नहीं. मतलब उससे ज़्यादा के लिए भी बने हैं हम, तो वो एक पॉइंट जो होगा कि हाँ हमें यहीं तक जाना है, तो वो इमेजिन कैसे करें? विजन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर. बट जैसे कि जैसे माइंड आपने में क्या हुई चल रही है सर, जैसे मेरा विजन है कि मुझे एक कैफे चेन स्टार्ट करना है. Nice. बट सर ये बटी तो बड़ा गलत वर्ड है अंग्रेजी. इट किल्स ऑल द ड्रीम्स. सर बट मुझे शायद मैं उससे ज़्यादा के लिए बनाऊं, तो सर वो करेंगे, फिर आगे देखेंगे. सर मतलब गो विद द फ्लो, या फिर एक पॉइंट को. No, not go with the flow. Take it step by step. Demo right here. Take step 1. This is step 1. You don't have to take it. I'll give you a demo. And I go step 2. And then I go step 3. I jump. Maybe I can cover 2 steps in one go. उससे ज़्यादा बड़ी छलांग, maybe I'll fall and hurt myself. Right? Take it one step at a time. So this is a problem with a lot of youngsters, not just hospitality graduates, everywhere. And remember you played that game when you were little, connecting the dots? Yes, right? sir. And so you have a broad idea ये क्या बनने वाला है, but आप enjoy क्या करते थे? एक से next dot connect कर रहे हैं, next dot. That's how life is. So don't take it too heavy on yourself at whatever age you're in. What are you, 19, 20 at the moment? 17. 17. That's too young to take all that burden on yourself. Cafe chain, good enough for now. Okay, sir. Right? Yes, Once you cover that, new things will emerge. और एक और चीज हो सकती है. In the process of doing that, you might have an aha moment. You say, okay, I could now, give franchisees. मेरे को actually हर सिटी में खुद स्टोर बनाने की जरूरत नहीं है. मैंने Yes, sir. Exactly. एक को perfect बना लिया. Now I'll do that. देखिए, ये फासला theoretically cover नहीं हो सकता. और जो यंगस्टर ये करने की कोशिश करेगा, परेशानी कि मेरी लाइफ आज ऐसे है, सर आज से 23 साल बाद आपकी ये ऐसे है, तो मेरी 23 साल बाद कैसे होगी? नॉट पॉसिबल. वॉट यू हैव टू डू इज, चंडीगढ़ से दिल्ली कितने लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं? अब कोई बंदा हेडलाइट ऑन करे चंडीगढ़ में, मोटिवेशनल स्पीकर से सवाल पूछे, सर दिल्ली तक क्यों नहीं नजर आ रहा? वैलिड क्वेश्चन. माई आंसर टू यू इज द सेम. फर्स्ट ड्राइव द 20 feet. Yes, sir. Then your headlights will tell you the next 20 feet and next 20 feet. You know you want to go to Delhi, but once you get to Delhi, say, नहीं मुझे दिल्ली नहीं रहना, मुझे न्यूयॉर्क जाना है. Fine. You're not a tree. पेड़ नहीं है, आप एक जगह फिक्स हो गए, जा सकते हैं. Dynamic. ये तो इंडस्ट्री आपको सिखा ही रही है. Yes, sir. You learn all these departments. You learn food production. You learn food science, wines, and what not, and food service and housekeeping. And then your mind is being stretched in multiple directions. You can do whatever you want. So
My precise answer to you is this: take it one step at a time. Enjoy the journey. Okay, sir. Yeah, Thank you. good things will come your way. Yes, sir. Thank you. All right, good. We can take one more question and then that'll be it. Young lady at the back. Ladies more active in this audience than the gentlemen are. I appreciate that. Very good. Sir, actually, I don't have any questions. I just want to thank you. Oh. Because of you, I am here. I was so confused with the institute, which one I will choose. Then I saw your a video. You are alumni of AIHM Chandigarh. That motivates me a lot to came in this institute. Thank you, sir. मैं ये आज इमोशनल होकर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं हर जगह कहता आया हूँ, वीडियोस में भी मैंने कहा है कि मैं आज जो हूँ उसमें एक बहुत अहम रोल है इस इंस्टीट्यूट का, और वो मैंने 18, 19, 20 साल बाद एक्सपीरियंस किया। तो मेरी बात को एज आप बिना डाउट के स्वीकार कर कर अगर मान कर चलेंगे तो आई थिंक यू विल गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट दैट बट इट्स अ लॉट इज अप टू यू दैट प्लीज डोंट फॉरगेट इट। मेरे बैच में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल उनका ओपिनियन अलग होगा, बिल्कुल उल्टा होगा मेरे से। कैसे हो सकता है? एक ही क्लास में, एक ही इंस्टीट्यूट में एक कह रहा है बहुत अच्छा था, मेरी जिंदगी बदल गई, एक कहता नहीं यार मेरी तो जिंदगी खराब हो गई यहाँ पे। हाउ इज दिस पॉसिबल? टेल मी। उसका देखने का नजरिया वो था ना, उसकी चॉइसेस और थे, उसको वो है। मैं तो आज ये समझता हूँ कि माई डायरेक्शन वुड हैव बीन सो कंप्लीटली डिफरेंट अगर मैं उस समय स्विच करके यहाँ ना आता, मेरे को ये एक्सपोजर ना मिलता और ये सब ना होता तो अगले स्टेप नहीं होते। जिंदगी वो ताश के पत्तों की तरह की वो गेम बनाते हैं ना, आप देखी होगी, बनाते नहीं तो वैसे खड़ा कर देते हैं ना वो कार्ड्स के साथ, राइट? एवरी स्टेप ऑन दिस जर्नी, हेलो, एवरी स्टेप, if you take out even one, you know what's going to happen? Collapse. So there are no mistakes. गलतियां तो हुई नहीं है, वो एक सीढ़ी का कदम था, एक वो गलती थोड़ी ना है। आज मैं वहां पहुंचा बोलूं ये सारी सीढ़ियां बेकार थी, काका उत्थे कितना पहुंचे हमसे? उनका रोल है। एवरीथिंग हैज हैड अ रोल टू प्ले फॉर यू। इसके बाद भी every struggle will have a role to play for you, provided you go out and give your best, and that's what you should do every day. Just get up, dress up, put on a smile. Smiles क्यों नहीं? आपकी तो रैगिंग भी नहीं हो रही हैं? Smiles कहाँ हैं? हमारे टाइम में होता था क्या? हमारे टाइम में उल्टा होता था, है ना राणा साहब? उन्होंने दस वाइप योर स्माइल। हमें नहीं समझा ये किया है, wipe your smile. We're like, right, that was a funny thing to do, but you're not being ragged, right? You're not sure. You're being ragged? Good. We went through a lot. And one of it was wipe your smiles. But you should have smiles on your face. So let's do this as no more questions, right? Let's do this as final closing activity. Look at somebody around you and give them a nice big smile for at least 60 seconds. Do it now. Do it now. होटेलियर है तो क्या है, स्माइल सिर्फ गेस्ट के लिए करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। Alright guys, thank you very much. It's been a lovely experience. AIHM Chandigarh, you guys rock! Go conquer the world! Thank you. अब वक्त हमारा है, go conquer the world. Thank you very much.